میرا نام انائزہ ہے۔ میری پیدائش کے 2 سال بعد میری ماں خالق حقیقی سے جا ملی۔ میرے پاس اس دنیا میں صرف ایک ہی رشتہ ہے اور وہ ہیں میرے پاپا موسیٰ انصاری۔ میرے مطابق دنیا میں شاید ہی کوئی باپ اپنی بیٹی سے اس قدر پیار کرتا ہو۔ انہوں نے مجھے ماں اور باپ دونوں کے ہی پیار سے نوازا۔ کہا جائے تو میرے پاپا میرے آئیڈیل ہیں، مگر آج یوں اچانک میرے پاپا نے مجھے خود سے بہت دور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آج سے 21 سال پہلے کا کیا ہوا وعدہ نبھا رہے ہیں جو میری پیدائش پر ان کے دوست نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا۔ تو پاپا نے وعدہ کیا تھا کہ وقت آنے پر میری بیٹی تمہارے بیٹے کی ہی دلہن بنے گی۔ میری چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا خیال رکھنے والے میرے پاپا، جو مجھے کانٹا چبھنے پہ بھی خود تڑپ اٹھتے تھے، آج ایک ہی بار میری تمام خوشیوں اور خواہشوں کا گلا گھونٹ کر مجھے یہاں بھیج دیا، ایک انجان شخص کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے لیے۔ نیو یارک میں آج میرا پہلا دن ہے۔ کچھ وقت پہلے میرا ایک ایسے شخص کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے جس کے بارے میں کچھ جاننا تو دور کی بات، مجھے اس کا نام بھی نکاح نامے پہ سائن کرتے وقت معلوم ہوا، روحان ارسم۔ وہ شخص کیسا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا، کیسے مزاج کا ہوگا، میرے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوگا؟ وہ صوفے پہ بیٹھی ٹھنڈ سے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کو مسلتی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی جب ملازمہ اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ بیگم صاحبہ آئیں، آپ کو صاحب کے کمرے تک چھوڑ دوں۔ انائزہ بھاری سرخ لہنگا سنبھالتے ہوئے اٹھی اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن اس وقت عروج پر تھی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے انائزہ کی نظر ایک بڑی سی گلاس وال کی جانب پڑی جو نیو یارک کا منظر پیش کر رہی تھی۔ سامنے سے گرتی سنو، جسے دیکھنے کا انائزہ کو بچپن سے ہی شوق تھا، آج وہ یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی، مگر اس وقت اس کا دل کسی بھی قسم کے جذبات سے آری تھا۔ ان کی فیملی کہاں ہے؟ انائزہ سنو فالنگ سے نظر ہٹا کر گھر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بڑی بیگم صاحبہ جو صاحب کی دادی تھیں، کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا، ملازمہ نے جواب دیا۔ اوہ، بہت افسوس ہوا۔ انایا کو اس وقت اپنی جان کے لالے پڑے تھے، کسی اور کی فکر کہاں تھی؟ اور باقی فیملی؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے سرسری طور پہ پوچھا۔ یہ رہا صاحب کا کمرہ۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر واپس مڑ گئی۔ یہ بات انائزہ کو کچھ عجیب لگی۔ انائزہ نے اپنا رخ کمرے کی طرف کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص اس وقت کمرے میں موجود ہے یا نہیں۔ اندر جانے کے خیال سے اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور ایک آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا۔ اتنا سادہ کمرہ اس نے شاید پہلی بار دیکھا تھا۔ سفید بیڈ شیٹ، گلاس وال کے ساتھ لٹکے سفید پردے۔ فرنیچر کے نام پر یہاں صرف 3 ہی چیزیں تھیں، بیڈ، صوفہ اور وارڈروب۔ اوہ میرے خدایا، نہ جانے یہ شخص کیسا ہوگا۔ ایک ڈر کے ساتھ انازیہ نے اپنا دوسرا قدم اندر رکھا۔ اب وہ دروازہ بند کر کے کمرے کا مزید جائزہ لینے لگی جب صوفے کے پیچھے سے اسے کچھ آہٹ سنائی دی۔ وہ بے آواز قدموں سے صوفے کی جانب بڑھنے لگی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ ایک لڑکا جو اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے یوں ڈر رہا تھا جیسے کبوتر کا بچہ بلی کے ڈر سے آنکھیں موندے بیٹھا ہو۔ کیا یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے؟ یہ ایک سوال تھا جو انائزہ نے خود سے کیا تھا۔ کون ہیں آپ؟ انائزہ نے اسے مخاطب کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ مزید اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپانے لگا۔ اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز انائزہ کی سماعت میں پڑی۔ روحان۔ انائزہ نے اس کا نام پکارا تاکہ وہ کنفرم کر سکے کہ کیا یہی وہ شخص ہے وہ جس کے نکاح میں ہے۔ روحان نے ڈرتے ڈرتے اپنا چہرہ گھٹنوں سے اوپر اٹھایا۔ خوبصورتی کی ایک ایسی مثال جسے دیکھ کر انائزہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ماتھے پہ گرتے سنہری بال، ایسی سبز آنکھیں کہ جن کی خوبصورتی بیان نہ کی جا سکے، خوف سے کپ کپاتے باریک سرخ لب جن کے نیچے بائیں جانب چھوٹا سا سیاہ تل تھا، دودیا رنگت جو ہاتھ لگانے سے شاید میلی ہو جاتی۔ پلیز مجھ سے دور رہو، میرے قریب مت آنا۔ وہ انائزہ سے اس طرح خوف کھا رہا تھا جیسے وہ انسان نہیں ایک چڑیل ہو۔ انائزہ اسے دیکھ کے پریشان ہونے لگی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تقریباً 26 سال کا ایک جوان لڑکا اس طرح کیسے ڈر سکتا ہے؟ روحان، اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ نہیں پلیز میرے پاس مت آنا۔ وہ کسی بچے کی طرح ہچکیوں سے رونے لگا۔ حیرت زدہ ہو کر انائزہ ایک ایک قدم اس سے پیچھے ہٹانے لگی۔ جب وہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے ٹکرائی، اس کی نظر ٹیبل پہ پڑی جہاں ایک میڈیکل فائل تھی۔ انائزہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فائل اٹھا کے کھولی۔ اس کی نظر ایک جگہ آ کے ٹھہر گئی۔ ہیومن فوبیا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں مریض انسانوں سے ہی ڈرتا ہے، ان کے وجود سے خوف کھاتا ہے، ان سے دور بھاگنا چاہتا ہے اور وہ ہر وقت اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ انائزہ کے ہاتھ سے فائل گری۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گئی۔ کیوں پاپا؟ آخر کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ اس کے خواب اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اب کمرے میں ایک نہیں 2 لوگ رو رہے تھے۔ روحان نے ہاتھ کی پشت سے اپنی سبز نم آنکھوں کو صاف کیا اور سہما ہوا انائزہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کو یہ تو معلوم تھا کہ آج اس کا انائزہ نام کی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا ہے، مگر اس نے یہ نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ روحان کی دادو دردانہ بیگم جو روحان کے قریب تھیں اس کا خیال رکھتی تھیں۔ روحان ان سے خوفزدہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک اس کی دادو ہی تو تھیں جو اس دنیا سے چھوڑ کر اس سے جا چکی تھیں۔ انہوں نے مرنے سے پہلے روحان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ پاکستان سے آنے والی انائزہ نام کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرے گا۔ روحان کے لاکھ انکار کے باوجود بھی دردانہ بیگم نے اسے راضی کر لیا تھا۔ اپنا کام پورا کرنے کے بعد ان کی زندگی کی مہلت ختم ہو گئی اور روحان اکیلا رہ گیا۔
आज दुर्दाना बेगम को इस दुनिया से रुखसत हुए 1 हफ्ता हो चुका था और इन 7 दिनों के दौरान रूहान डर के मारे अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। वो ना तो ढंग से कुछ खा रहा था, ना अपना ख्याल रख रहा था। तब से उसकी ज़ुबान से बस एक ही लफ्ज़ अदा हो रहा था, दादो। वो अभी भी रोते रोते दादो दादो कह रहा था कि अनाइज़ा ने उसकी तरफ हिकारत भरी नज़रों से देखा। पता नहीं मेरे किस गुनाह की सज़ा हो तुम, अनाइज़ा ने रूहान की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। रूहान उसकी बात सुन के मज़ीद खौफज़दा होने लगा और खिसकता हुआ दीवार के कोने में जा बैठा। पापा, ये क्या किया है आपने? मुझे यहाँ एक मरीज़ की देखभाल के लिए आया बना के भेज दिया। उसने माथे पे हाथ रखा। रूहान ने उसकी बातें सुन के फिर से रोना शुरू किया। उसकी सिसकियाँ फिर से अनाइज़ा के कानों में पड़ने लगीं। चुप करो, अनाइज़ा चिल्लाई। रूहान की सिसकी उसके मुंह में ही रह गई। खौफ से वो कांपने लगा। उसके सुर्ख होंठ का निचला तिल होंठों की कपकपाहट के साथ कपकपा रहा था। अगर वो एक मरीज़ ना होता तो अनाइज़ा अपनी किस्मत पे रश्क करती। गुस्से के साथ वो उठी, वार्डरोब खोला, एक सादा सा सूट निकाला और वॉशरूम में घुस गई। रूहान ने धुंधलाती आंखों से उसे वॉशरूम जाते देखा और अपनी आंखें साफ की। तकरीबन 15 मिनट बाद वो टॉवल से बाल खुश्क करती बाहर निकली और रूहान को वहीं बैठे पाया। उठो, बेड पे सो जाओ, वो तलख लहजे से बोली। वो मासूम जो वैसे ही उससे डर रहा था, उसके गुस्से से मजीद खौफ खाने लगा। रूहान जानता था कि उसे अनाइज़ा के साथ बेड शेयर करना पड़ेगा। इस डर से उसने अनाइज़ा की एक ना सुनते हुए अपने घुटनों में चेहरा छुपाया। तुम्हें एक बार बात समझ में नहीं आती क्या? वो चिल्लाई। रूहान की हालत बिगड़ रही थी। वो चेहरा छुपाए बैठा था। अनाइज़ा ने टावल एक साइड पर रखा और तेज़ कदमों से उसकी तरफ आई। अभी और इसी वक्त उठो यहाँ से, वो मुसलसल चिल्ला रही थी। रूहान की तरफ से कोई रद्द अमल ना पाकर अनाइज़ा ने उसे कंधों से पकड़ के झंझोड़ा। एकदम से रूहान ने चेहरा ऊपर किया और अनाइज़ा को धक्का देके कमरे से बाहर निकल गया। अनाइज़ा का माथा दीवार के साथ लगा। वो अपना सर पकड़ते हुए वहीं बैठ गई। मुलाजिमा ने रूहान को बाहर के गेट की तरफ भागते हुए देखा तो वो फ़ौरन उसके पीछे भागी। रूहान बाबा, रुक जाए, उसने आवाज़ लगाई, मगर रूहान किसी की सुनने वाला ना था। वो हाँपता हुआ गेट खोलकर बाहर निकल गया। उस वक्त भी स्नो फॉलिंग हो रही थी। मुलाजिमा रूहान के लिए परेशान हुई। मुलाजिमा वॉचमैन जो कि उसका शौहर था, उसके रूम में उसके सर पे आन खड़ी हुई। तुम सो मर लो शफीक, रूहान बाबा बाहर निकल गए हैं। पता है ना कितना घना जंगल है बाहर। वो उसके पास खड़ी यूं चिल्लाई कि शफीक हड़बड़ा के उठा। क्या हुआ अकीला, क्यों नींद खराब कर रही हो? रूहान बाबा भाग गए हैं जंगल की तरफ, जल्दी उठो, उन्हें ढूंढो, अकीला परेशानी से बोली। क्या? रूहान बाबा घर से बाहर निकल गए? अल्लाह खैर करे, अब तो दुर्दाना बेगम भी नहीं है जो उन्हें लाड प्यार से समझा के वापस ले आती। रूहान बाबा मेरी बात कैसे मानेंगे? तुम्हें तो पता ही है कितना डरते हैं वो सबसे। शफीक, ये बात बड़ी परेशानी की है। अब हम क्या करें? हमने उन्हें ढूंढ भी लिया तो वो कभी हमारे साथ नहीं आएंगे। अकीला परेशान हुई। तुम ऐसा करो, बेगम साहिबा को बुला के लाओ, वही उन्हें वापस लेके आएंगी। हाँ ये ठीक है, मैं अभी उन्हें बुला के लाती हूँ। शफीक के कहने पर अकीला अंदर की तरफ भागी। अनाइज़ा अपने माथे पे बैंडेज लगा रही थी जब अकीला तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई। बेगम साहिबा, रूहान बाबा जंगल की तरफ भाग गए हैं। तो अनाइज़ा लापरवाही से बोली। अकीला उसकी बात पे हैरान हुई। तो आप हमारे साथ चलें, उन्हें ढूंढ के वापस घर लाएं। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, मुझे नींद आ रही है। वो बेड की तरफ चल दी। अकीला मुंह खोले उसे देखने लगी। जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना, अनाइज़ा ने कंफर्टर ऊपर लेते हुए कहा। अकीला खामोशी से मुड़ी और दरवाज़ा बंद किया। अब वो वापस शफीक के पास आई। बेगम साहिबा किधर हैं? शफीक ने पूछा। उन्होंने तो आने से इनकार कर दिया, वो तो सो गई। क्या? शफीक को अकीला की बात से सदमा लगा। अकीला, चलो हमें रूहान बाबा को ढूंढ के कैसे भी घर लेके आना होगा। हाँ, अल्लाह सब खैर करे, बस रूहान बाबा हमारी बात मान जाए। वो दोनों खैरियत की दुआ करते हुए गेट से बाहर निकल गए। रूहान बाबा, रूहान बाबा, वो पिछले 1 घंटे से बर्फ़ पे चलते हुए उसे आवाज़ें लगाते हुए ढूंढ रहे थे, मगर रूहान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। रूहान बाबा किधर हो आप? अल्लाह के लिए सामने आ जाएं, घर चलते हैं, अकीला ऊंची आवाज़ में बोली। रात के 10 बजे का वक्त था और वो हाथों में टॉर्च लिए उसे ढूंढने की कोशिश में लगे हुए थे। उस वक्त अगर रूहान मिल जाता तो ये मोजज़ा ही होता। जंगल में जानवर ना होने की वजह से उन्हें किसी किस्म का डर नहीं था। अनाइज़ा 1 घंटे से सोने की कोशिश कर रही थी मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी इस तरह की होगी उसने कभी सोचा नहीं था। उसने अपने शौहर के बारे में क्या क्या ख्वाब देख रखे थे। रूहान खूबसूरत तो बेहद था, मगर अनाइज़ा के सामने उसकी खूबसूरती के आगे उसकी बीमारी भारी पड़ गई। उसने लैंप ऑन करके घड़ी को देखा जो रात के 11 बजा रही थी। उसे रूहान का ख्याल आया कि ना जाने वो इतनी रात गए कहाँ होगा। फिर अपने जहन को झटकते हुए फिर से कंफर्टर ओढ़े लेट गई। 10 मिनट तक लेटे रहने के बाद भी उसके जहन से रूहान का ख्याल ना गया। उसके सामने रूहान की रोती हुई सबज आंखों का मंजर आने लगा। उफ, क्या मुसीबत है। वो चिढ़ती हुई बिस्तर से उठी और ग्लास वॉल की तरफ आई। सफ़ेद पर्दे हटा के देखा तो स्नो फॉलिंग हो रही थी। इतनी ठंड देखकर ही अनाइज़ा को कपकपी तारी हो गई। इतनी ठंड रूहान कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा? उसने तो कोट भी नहीं पहना, उसने दिल में कहा। वो मुड़ी, वार्डरोब से 2 ओवरकोट उठाए, एक खुद पहना और दूसरा रूहान के लिए। एक हाथ में कोट, दूसरे हाथ में टॉर्च पकड़े वो कमरे से बाहर निकल गई। उसने आसपास मुलाजिमा को देखा जो कहीं नज़र नहीं आई। इससे अनाइज़ा को मालूम हो चुका था कि वो रूहान को ढूंढने के लिए गई है। घर के अंदरूनी दरवाजे से बाहर निकलते ही
ठंड ने उसे अपने घेरे में लिया। वो कपकपाती हुई गेट की तरफ भागी। गेट से निकलते ही दाईं जानिब घने जंगल को पाया। एक पल के लिए तो वो खौफजदा हुई, फिर हिम्मत करती हुई जंगल में दाखिल हुई। टॉर्च को दाएं बाएं फेरती वो उसे ढूंढने लगी। रोहान, उसने आवाज़ लगाई। जंगल में मुकम्मल खामोशी थी। अनाइज़ा का दिल धक धक कर रहा था। एक तो वो जंगल में पहली बार दाखिल हुई थी, दूसरा इतनी रात को। उसने ये कभी सोचा भी नहीं था। रोहान बाबा, अनाइज़ा को अकीला की आवाज़ सुनाई दी। मुलाजिमा, अनाइज़ा ने उसे पुकारा क्योंकि वो उसका नाम नहीं जानती थी। वो आज ही तो यहाँ आई थी। अकीला की आवाज़ सुनकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। अनाइज़ा भी उसकी तरफ चलने लगी जहाँ से अकीला की आवाज़ आई थी। अचानक अनाइज़ा किसी चीज़ से टकराई और बर्फ़ से भरी ज़मीन पर गिरी। उसने टॉर्च उस चीज़ की तरफ घुमाई। रोहान, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। रोहान आधा बर्फ़ में और आधा बर्फ़ से बाहर बेहोश पड़ा था। उसका जिस्म किसी मुर्दे की तरह अकड़ चुका था। मुलाजिमा, जल्दी यहाँ आओ, रोहान मिल गया है, अनाइज़ा ने आवाज़ लगाई। अकीला भी शफीक को आवाज़ें लगाती उस तरफ भागी। अनाइज़ा रोहान के ऊपर से बर्फ़ हटा रही थी जब अकीला वहाँ पे पहुंची। या अल्लाह रहम, बेसाख्ता अकीला के मुंह से निकला। वो भागती हुई रोहान के पास आई। रोहान बाबा, वो उसका चेहरा थपथपाते हुए रोने लगी। उसे यूं रोता हुआ देखकर अनाइज़ा हैरान हुई कि एक मुलाजिमा होकर उसे रोहान की इतनी फिक्र कैसे। शफीक पहुंचा, रोहान की हालत देख के परेशान हुआ। तुम रोहान को उठाओ, मैं इसे कोट पहनाती हूँ, अनाइज़ा बोली। शफीक ने रोहान को उठाया और अनाइज़ा ने उसके ऊपर कोट डालकर उसे ढांपा ताकि वो मज़ीद ठंड और बर्फ़ से बच सके। अब उनका रुख घर की तरफ था। 10 मिनट का सफ़र ज़मीन पर पड़ी बर्फ़ की वजह से 15 मिनट में तय हुआ। शफीक ने रोहान को उसके कमरे में लाके बिस्तर पर लिटाया। शफीक, जल्दी डॉक्टर को फ़ोन करके आओ, अकीला बोली। शफीक बाहर की तरफ भागा। अकीला ने रोहान के ऊपर कंफर्टर डाला और हीटर तेज़ किया। अनाइज़ा उन दोनों का इतना परेशान होना देख के हैरान हो रही थी। अकीला, सिग्नल का मसला बन रहा है, फ़ोन नहीं हो सकता, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। शफीक भागता हुआ दरवाजे की तरफ गया। ये सिग्नल का मसला भी आज ही बनना था। अच्छा तुम जाओ, कोशिश करना जल्दी आ जाओ, अकीला बोली। हाँ, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा, शफीक कह के मुड़ा। बेगम साहिबा, मैं बाहर जाती हूँ, आप डॉक्टर के आने से पहले रोहान बाबा के कपड़े बदल दें। क्या? उसकी बात पे अनाइज़ा का मुंह खुला। ये काम सिर्फ आप ही कर सकती हैं, वो बेचारा सा मुंह बना के बोली। मगर देखिए बेगम साहिबा, ये सोचने का वक्त नहीं है, वो पहले ही ठंड से बेहोश हो चुके हैं, मैं बाहर जा रही हूँ, आप इनको चेंज करवा दें। अकीला उसकी बात काट के अपनी सुनाती हुई दरवाज़ा बंद करके बाहर जा चुकी थी। अनाइज़ा परेशान सी खड़ी अब सोच रही थी कि क्या करे। उसने एक नज़र रोहान की तरफ देखा। ठंड की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। अनाइज़ा ने एक लंबा सांस खींचा, वार्डरोब से एक ड्रेस निकाल के बेड की तरफ आई। उसने रोहान के ऊपर से कंफर्टर हटाया और उसे देखने लगी। बेहद खूबसूरत, अनाया के दिल ने कहा। फिर जल्दी से अपने ख्याल को झटका। उसने लाइट ऑफ की और रोहान की शर्ट को खोलने लगी। उसके सीने से टकराती अनाइज़ा की उंगलियां उसके दिल की धड़कन को बढ़ा रही थीं। उसने पूरी ताकत से उठाकर रोहान का सर अपने कंधे पर रखा और शर्ट उतार कर दूसरी शर्ट पहनाई। अब उसने उसे लिटाया, शर्ट के बटन बंद किए। धड़कते दिल के साथ उसने बाकी के कपड़े चेंज किए और लाइट ऑन की। रोशनी होते ही उसकी नज़र रोहान के होंठ के नीचे काले तिल पर आकर ठहर गई। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? अनाइज़ा का दिल फिर से बोला। बेगम साहिबा, डॉक्टर आ गए, बाहर से अकीला की आवाज़ आई। ले आओ अंदर, अनाइज़ा ने कहते हुए रोहान के ऊपर कंफर्टर डाला। डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ, रोहान का चेकअप करने लगा। बुखार बहुत तेज़ है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हीट दें वरना नमूनिया हो सकता है, डॉक्टर बोला। उसने अपने बॉक्स में से कुछ मेडिसिन निकाल कर अनाइज़ा को पकड़ाई और समझाने लगा। डॉक्टर साहब, और तो कोई फ़िक्र की बात तो नहीं, अकीला परेशानी से बोली। अगर हीट ना मिली तो फ़िक्र की बात है, डॉक्टर ने कहते हुए अपना बॉक्स उठाया और शफीक के साथ बाहर हो लिया। बेगम साहिबा, अकीला भी बोली ही थी कि अनाइज़ा ने उसे टोका। हाँ, दे रही हूँ मेडिसिन और ख्याल भी रखूँगी, अब तुम जाओ। जी अच्छा, अकीला कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अनाइज़ा ने पानी में टैबलेट्स मिलाकर चम्मच से रोहान को पिलाई और उसके आसपास कंफर्टर दबाती हुई उठी। अपनी साइड पर आकर वो लेट गई। उसकी नज़रें अभी भी रोहान पर ही थीं। उसके जहन में डॉक्टर की बात आई कि रोहान को हीट ना दी गई तो उसे नमूनिया हो सकता है। उसने हीटर फुल ऑन किया और फिर से रोहान को देखने लगी। सुनहरी बाल, उसके सुनहरी बाल देखकर अनाइज़ा का दिल चाहा कि उनमें उंगलियां फेरे। दिल की मानते हुए उसने अपना हाथ उसके सुनहरी बालों की तरफ बढ़ाया और आहिस्ता से उंगलियां फेरने लगी। रोहान के जिस्म में एक कपकपी तारी हुई, शायद अभी भी वो ठंड के हिसार में था। अनाइज़ा खिसक के उसके करीब हुई और उसे अपने हिसार में ले लिया। कब उस पर नींद का गलबा तारी हुआ उसे खबर ना हुई। गिलास वॉल से आती रोशनी से रोहान की आंखें आधी खुलीं। उसे अपने गिर्द किसी का हिसार महसूस हुआ। उसने झट से पूरी आंखें खोलीं और खुद से लिपटी अनाइज़ा को देखा। उसका दिल धक धक करने लगा। शायद इस बार खौफ के साथ एक और एहसास भी शामिल था। रोहान एक झटके के साथ उससे अलग हुआ और खुद को ना संभालते हुए बेड से नीचे फर्श पे जा गिरा। धड़ाम की आवाज़ से अनाइज़ा ने आंखें खोली। अपने साथ रोहान को ना पाके वो उठ के बैठी। जब उसकी नज़र फर्श पे गिरे हुए रोहान पे पड़ी,
रूहान को फिर से डरता देखकर अनाइज़ा को बुरा लगा। रूहान जल्दी से उठ के बैठा और सहमा हुआ उसकी तरफ देखने लगा। कल रात अनाइज़ा का उसके साथ जो रवैया था, अब वो उससे मज़ीद डरने लगा था। नीचे क्या कर रहे हो, ठंड लग जाएगी, इधर आके लेटो, अनाइज़ा ने उसे घूरी से नवाजते हुए कहा। रूहान ने अपना सर नफ़ी में हिलाया। क्या? अनाइज़ा ने एक घूरी मज़ीद रूहान के पेशे खिदमत की। वो रूहान की आंखों में डर देख सकती थी। अच्छा इधर आके लेटो, ठंड लग जाएगी, और तुम्हें बुखार भी है, इस बार वो नरमी से बोली। उसका नरम लहजा देखकर रूहान आहिस्ता से उठा और बेड के बिल्कुल कोने में लगकर कंफर्टर लिए दुबक गया। अनाइज़ा उसकी इस हरकत पर गुस्से से उठी और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। रूहान ने उसके कदमों की आवाज़ सुनी तो कंफर्टर से एक सबज आंख निकालकर उसकी तरफ देखा। तभी अनाइज़ा अपने कपड़े लेने के लिए बाहर निकली। उसकी नज़र रूहान की नज़र से टकराई। उसने जल्दी से अपना चेहरा कंफर्टर में छुपा लिया और दोबारा ऐसी हरकत करने से तौबा कर ली। उसके डरने की वजह से अनाइज़ा को गुस्सा आ रहा था। वो वार्डरोब से ड्रेस निकालती हुई वापस वॉशरूम में चली गई। अकीला किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी जब अनाइज़ा वहाँ पहुंची। नाश्ते में क्या बना रही हो, उसने अकीला से सवाल किया। रूहान बाबा को तो फ्राई अंडा, टोस्ट और चाय दूंगी, आपने क्या खाना है बता दें। मेरे लिए भी यही बना दो, अनाइज़ा बोली। जी अच्छा, अकीला ने जवाब दिया। इतना बड़ा घर है ये, और यहाँ क्या बस रूहान के साथ इसकी दादो ही रहती थी, अनाइज़ा घर को देखते हुए बोली। वो वाकई ये खूबसूरत और बड़ा घर था। जी, अकीला ने मुख्तसर जवाब दिया। तुमसे मैंने पहले भी रूहान की फैमिली के बारे में पूछा था, तब भी तुमने मुझे नहीं बताया। अनाइज़ा को उसका जवाब ना देना बुरा लगा। बेगम साहिबा, बड़ी बेगम साहिबा ने हमसे वादा लिया था कि हम कभी भी रूहान बाबा के माँ बाप का जिक्र इस घर में नहीं करेंगे, और ना ही वो खुद उनका जिक्र करती थी। अच्छा, ऐसी क्या बात है कि कोई उनका जिक्र ही नहीं करना चाहता, अनाइज़ा ने बात को कुरेदा। नाश्ता बन गया है, मैं रूहान बाबा को दे के आती हूँ। अकीला ने नाश्ते की ट्रे उठाई। रहने दो, मैं खुद लेके जाऊँगी, तो मेरा नाश्ता भी इसमें रख दो, अनाइज़ा चिढ़ के बोली थी। अकीला ने एक बड़ी ट्रे उठाई जिसमें रूहान के साथ अनाइज़ा का भी नाश्ता रखा और उसे पकड़ा दिया। अनाइज़ा ट्रे थामती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वो कमरे में दाखिल हुई तो रूहान वॉशरूम में था। अनाइज़ा ने नाश्ता टेबल पर रखा, उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। रूहान अपने कपड़े ले जाना भूल गया था। अब वो परेशान होने लगा कि बाहर कैसे जाए। उसे आहट से शक हो गया था कि अनाइज़ा कमरे में ही मौजूद है। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा इतना खोला कि एक आंख से बाहर देखा जा सके। वो दरवाजे में आंख लगाए देख रहा था कि अनाइज़ा कमरे में है या नहीं। अनाइज़ा सोफे पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। रूहान ने तेज़ी से दरवाज़ा बंद किया। रूहान जल्दी आ जाओ, बाहर नाश्ता ठंडा हो रहा है। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से उसे मालूम हुआ कि रूहान ने उसे देखा है। रूहान परेशान सा अंदर खड़ा रहा कि अब क्या करे। एक कपड़े ना होने की परेशानी, दूसरा अनाइज़ा के होने का डर। वो खड़ा भी सोच ही रहा था जब अनाइज़ा की दोबारा आवाज़ उसके कानों में पड़ी। रूहान बाहर आओ। अब ना जाने क्या होगा, इस डर से रूहान कांपने लगा। मज़ीद 2 मिनट गुजरने पे भी जब रूहान बाहर ना आया तो अनाइज़ा उठ के वॉशरूम के पास आई। रूहान, तुम अगर अभी भी बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ जाऊँगी, वो दरवाजे के पास होते हुए बोली। रूहान ने दरवाजे का लॉक चेक किया जो उसने लगाया हुआ था। वो सोचने लगा कि दरवाज़ा तो लॉक है, तो फिर अनाइज़ा अंदर दाखिल नहीं हो सकती। उसने दिल में शुक्र अदा किया। रूहान, मेरे पास वॉशरूम की दूसरी चाबी है, अगर तुम 1 मिनट के अंदर अंदर बाहर ना आए तो फिर देखना मैं खुद अंदर आ जाऊँगी। अनाइज़ा के पास कोई चाबी नहीं थी। उसने ये झूठ रूहान को बाहर निकालने के लिए बोला था। उसकी चाबी वाली बात सुनकर रूहान के पाँव तले से ज़मीन निकली। वो दीवार के साथ लग के बैठा और डरने लगा। 1, 2, 3। जैसे जैसे अनाइज़ा काउंटिंग कर रही थी वैसे वैसे रूहान का खौफ बढ़ता जा रहा था। अनाइज़ा काउंटिंग करते करते 59 पे पहुंची जब वॉशरूम का लॉक खुला, मगर दरवाज़ा अभी भी बंद था। अनाइज़ा ने दरवाज़ा धकेला तो उसकी तरफ कमर किए हुए दीवार के साथ चिपक के खड़े रूहान को देखा। रूहान ने अपने जिस्म पे 2 टॉवल लपेटे हुए थे, एक जो उसके सीने और कमर को ढांपे हुए था और दूसरा जो उसने टांगों के गिर्द बांधा था। अनाइज़ा को उसे यूं देख के हैरत हुई। इतना तो लड़कियां भी नहीं शर्माती जितना तुम शर्मा रहे हो, अनाइज़ा ने तंज किया। वो वार्डरोब की तरफ आ गई, रूहान के लिए पैंट शर्ट निकाली। ये लो और पहन के अभी आना बाहर, वो उसकी तरफ कपड़े बढ़ाते हुए बोली। रूहान का कांपता हुआ हाथ उसकी तरफ बढ़ा और तेज़ी से कपड़े पकड़कर उसने दरवाज़ा बंद किया। अनाइज़ा वापस सोफे पे आके बैठ गई। रूहान बाहर निकला तो अनाइज़ा ने उसकी तरफ देखा। सुनहरी बाल जिनसे पानी के कतरे टपक रहे थे, सबज आंखों पर भीगी काली पलकों की झालर। वो मबहूत सी उसकी तरफ देखने लगी। रूहान उसकी नज़रों से मज़ीद घबराने लगा। उसने सोफे पर बैठने की जुर्रत ना की और वहीं जम के खड़ा रहा। आओ इधर नाश्ता करें, अनाइज़ा ने उसकी तरफ से ध्यान हटाया। रूहान बगैर जवाब दिए खामोशी से खड़ा रहा। आओ भी, वो फिर से बोली। रूहान ने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया। तुम आ रहे हो या नहीं, अनाइज़ा का लहजा तल्ख हुआ। अभी 1 सेकंड भी नहीं गुजरा था कि रूहान की आंखों से आंसू गिरने लगे। अनाइज़ा हैरत ज़दा उसे देखती रह गई। रूहान इधर आओ, नाश्ता करो, वरना बुखार मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होगा। इस बार वो प्यार से बोली थी, जैसे किसी रूठे हुए बच्चे को मनाया जाए। रूहान ने कनखियों से अनाइज़ा की तरफ देखा और मुर्दा कदमों से सोफे पे आके बैठ गया। अनाइज़ा ने अपने और उसके दरमियान में ट्रे रखी और उसे नाश्ता करने को कहा। वो पहले ही उससे खौफजदा था, उसके सामने खाना कैसे खाता। अनाइज़ा ने ही नाश्ता शुरू किया, मगर रूहान वैसे ही बैठा रहा। भूख नहीं है क्या, अनाइज़ा ने सवाल किया।
रूहान ने मस्बत सर हिलाया। तो शुरू करो ना, ऐसे क्यों बैठे हो? रूहान ने कोई रद्द-ए-अमल ना किया। अनायज़ा ने टोस्ट का नवाला बनाकर रूहान की तरफ बढ़ाया। रूहान ने एक नज़र नवाले को देखा, फिर एक नज़र अनायज़ा की तरफ देखा। मुंह खोलो, वो नरमी से बोली। आहिस्ता से लब खुले और अनायज़ा ने उसके मुंह में नवाला डाला। जब वो नवाला चबा रहा था तो अनायज़ा उसकी तरफ देखने लगी। बारीक सुर्ख लब जैसे जैसे गर्दिश करते उसके होंठ का निचला तिल भी वही रद्द-ए-अमल दोहराता। अनायज़ा के जहन में ऐसे वैसे ख्यालात आने लगे। फिर जल्दी अपने जहन को झटका और नाश्ता करने लगी। रूहान भी कपकपाते हाथों से नाश्ते में मसरूफ़ हुआ। आज स्नो फॉलिंग नहीं हो रही थी, इसीलिए दोपहर के वक्त शफीक लॉन में बैठा पौधों की कांट छांट कर रहा था। जब अनायज़ा कोट की पॉकेट्स में हाथ डालती हुई उसके पास आई, उसने एक बेल से सफ़ेद फूल तोड़ा। ये कौन से फूल हैं? मैंने पहले कभी नहीं देखे, उसने शफीक से पूछा। बेगम साहिबा पाकिस्तान से आई हैं ना, इसलिए आपको इनके बारे में नहीं मालूम। ये यहाँ के महंगे तरीन पौधे हैं, बड़ी बेगम साहिबा ने लगवाए थे। उनको पौधों का बड़ा ही शौक था। अनायज़ा ने कहा। कब न्यूयॉर्क में सेटल हुई थी आपकी बेगम साहिबा? उसने फिर अंदर की बात जानना चाहिए। रूहान बाबा की पैदाइश के बाद से ही वो यहाँ आ गई थी और हम उनके पुराने नौकर हैं। हमारे बाप दादा भी उनके यहाँ काम करते थे, इसीलिए वो हमें भी अपने साथ ले आई। अच्छा, और रूहान के माँ बाप इस वक्त कहाँ हैं? वो उसी मौजू पे आई। वो मुझे और अकीला को मार्केट जाना है, घर का बहुत सा ज़रूरी सामान ख़त्म हो चुका है, उसने कहते हुए अकीला को आवाज़ लगाई। अनायज़ा ने उसके बात बदलने पे दांत पीसे। अंदर की कहानी तो मैं भी पता लगा के ही रहूँगी, उसने दिल में कहा। अकीला चादर लिए शफीक के पास आई। हाँ चलो, उसने जवाब दिया। बेगम साहिबा हम बस 1-2 घंटों में वापस आ जाएंगे। आप रूहान हाँ ख्याल रखूँगी, बेफिक्र रहो। अनायज़ा ने उसकी बात को टोका। अकीला मुंह बसोरती हुई शफीक के साथ चल दी। अनायज़ा वापस घर में दाखिल हुई, सभी कमरों को चेक करने लगी। आज कुछ तो पता लगा के रहूँगी। उसने 2-3 कमरे चेक किए, सभी लॉक्ड थे। उफ, ये चाबियाँ पता नहीं कहाँ हैं। हाँ, अकीला के कमरे में होंगी। वो भागती हुई अकीला के कमरे में पहुंची। बिस्तर, दराज और अलमारियाँ चेक करने पे भी उसे चाबियाँ ना मिली। शिट, मैं ये मौका हाथ से नहीं गंवा सकती। उसने फिर से हिम्मत पकड़ी और एक एक चीज़ को ध्यान से देखने लगी कि उसे छन की आवाज़ आई। ये क्या है? खुद कलामी करते हुए उसने एक छोटा सा बॉक्स निकाला। वो काफ़ी पुराना लग रहा था। अनायज़ा ने उसे खोला तो चाबियों का एक गुच्छा मिला। खुशी से उसकी आंखें चमकी। वो हर चीज़ को अपनी जगह पे सेट करती हुई कमरे से बाहर निकली। घर के 4 कमरे बंद थे। वो एक एक कमरे का लॉक खोलती चेक करती चली गई। वो 3 कमरे देख चुकी थी जिनमें सिवाय फर्नीचर के कुछ ना था। उसने चौथे कमरे का लॉक खोला और अंदर दाखिल हुई। कमरे की तमाम चीज़ें सफ़ेद कपड़े से ढांपी गई थीं और बेड से ऊपर एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। धूल मिट्टी की वजह से अनायज़ा को तस्वीर में कुछ नज़र नहीं आया। उसने बेड से कपड़ा हटाया और ऊपर चढ़कर तस्वीर उतारी। वो उसी सफ़ेद कपड़े से तस्वीर को झाड़ने लगी। धूल उड़ने की वजह से वो खांसने लगी। मुकम्मल तौर पर साफ़ करने के बाद उसकी नज़रें उस तस्वीर पर जमी की जमी रह गईं। वो तकरीबन 23 साल जवान लड़की थी। कमर तक आते सुनहरी बाल, बड़ी सब्ज़ आँखें, सुर्खो सफ़ेद और बारीक होंठों के नीचे दाईं जानिब स्याह तिल। खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, अनायज़ा ने ज़ेरे लब कहा। वो उसे देखते ही पहचान गई कि ये रूहान की माँ है, इसलिए रूहान बिल्कुल अपनी माँ से मुशाबहत रखता है। तस्वीर के कोने पर मरियम जमाल राना लिखा था। अनायज़ा ने वो तस्वीर को बेड पे रखा, साइड टेबल के दराज खोलने लगी। दोनों दराजों में से कुछ नहीं मिला। फिर वो तेज़ कदमों से ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी। पहला दराज खोलते ही उसकी नज़र एक किताब पे पड़ी। उसने बाहर निकाल के उसे साफ़ किया। ओह, ये तो एक डायरी है, उसने खुद कलामी की। अनायज़ा ने वो डायरी अपने दुपट्टे में छुपा ली और तस्वीर को दीवार पर लगाते हुए कमरा लॉक करके बाहर आई। उसने अकीला के कमरे में जाकर उसी बॉक्स में चाबियाँ रखी और अपने कमरे का रुख किया। वो कमरे में आई तो रूहान मैगज़ीन पे सर झुकाए बैठा था। तुम मैगज़ीन भी पढ़ लेते हो? मैं तो समझी थी डरने और रोने के सिवा और कोई काम नहीं तुम्हें। अनायज़ा ने रूहान पे खूब तंज किया। रूहान पेजेस पलट रहा था कि उसके आने से सहम गया। उसका हाथ अभी तक पेज पकड़े वहीं पे टिका हुआ था। अनायज़ा ने रूहान की इस हरकत को देखा तो तंज से सर एक तरफ झटका। मेडिसिन ले ली थी तुमने? रूहान ने नफ़ी में सर हिलाया। किस खुशी में? अनायज़ा ने फिर से तंज किया। बेड पे बैठ के उसने छुपके से डायरी तकिए के नीचे रखी। रूहान अनायज़ा की तरफ कमर किए बैठा था। अनायज़ा को यह देख के तप चढ़ी। क्या कोई चुड़ैल हूँ मैं जो तुम्हें खा जाऊंगी? उसने ऊंची आवाज़ में कहा। रूहान के जिस्म में खौफ से कपकपी तारी हुई। ये चीज़ अनायज़ा ने नोट की थी। इधर देखो, मेरी तरफ रुख करो। रूहान बगैर रद्द अमल किए बैठा रहा। रूहान, मैं क्या कह रही हूँ? अनायज़ा बोली। रूहान उसकी बात को इग्नोर करते हुए उठा और कमरे से बाहर निकल गया। हो मेरे खुदाया, ये किस किस्म के इंसान की तूने मुझे बीवी बना दिया? उसने अपना माथा पीटा। रात का अंधेरा छा चुका था। अनायज़ा ने ग्लास वॉल पे नज़र डाली तो अकीला और शफीक घर आ रहे थे। रात का खाना अनायज़ा ने टेबल पर खाया था और रूहान के लिए कमरे में भिजवा दिया था। वो कमरे में दाखिल हुई तो रूहान मेडिसिन ले रहा था। रुको, मैं देती हूँ, वो मीठी ज़ुबान में बोली। रूहान ने चोर नज़र से उसकी तरफ देखा मगर खामोश रहा। अनायज़ा ने उसे मेडिसिन निकाल के दी जो कि पकड़ते हुए रूहान के हाथ डर से कांपने लगे।
अनायज़ा ने दिल ही दिल में उसे खरी खरी सुनाई, मगर ज़ुबान से कुछ ना बोली। वो बिस्तर पे अपनी जगह आके बैठी और रूहान कंफर्टर में दुबक गया। पल में ही वो गहरी नींद सो चुका था। अनायज़ा ने उसे मेडिसिन में नींद की टैबलेट दे दी थी। उसने रूहान को गौर से देखा, वो वाकई सो रहा था। फिर उसने तकिए के नीचे से डायरी निकाल के खोली। अनायज़ा ने डायरी खोली तो पहले ही वर्क पर पूरी फैमिली की तस्वीर थी। उसने हर नफ्स को गौर से देखा। उसे ये तस्वीर किसी तकरीब की लग रही थी। फिर उसने वर्क बदला और मरियम की कहानी सामने आई और वो दिलचस्पी से पढ़ने लगी। माजी 1/10/1991। पूरी हवेली मेहमानों से भरी है। 4 सू खुशियों का समा है। आज मैं मरियम जमाल राना अपने चचाजाद अरसम कमाल राना से मंगनी के रिश्ते में मुंसलिक होने जा रही हूँ। हाय रे मेरी प्यारी सी अनारकली, आज तो आपको आपके ख्वाबों का शहजादा सलीम मिल ही गया। 18 साला शहजादी ने मरियम को छेड़ा। शहजादी छोटी हो छोटी रहो, और वैसे भी तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे आज ही मेरी शादी होने वाली है। मरियम ने उसे प्यार से डांटा। हाय काश आज ही आपकी शादी हो जाती, मैंने तो खूब नाचना था, बिल्कुल पारो की तरह यूं यूं करके। वो डांस स्टेप करते हुए मरियम को बता रही थी। शर्म करो, अम्मी जान आ गई ना तो तुम्हारा सारा नाचना निकाल के रख देंगी। उसने शहजादी के डांस स्टेप की तरफ उंगली घुमाई। ओहो आपी, एक तो आप मुझे 2 पल ढंग से खुश भी नहीं होने देती। आप तो जानती हैं ना मुझे नाचने का कितना शौक है। अच्छा नाच लेना, मेरी शादी पे भी नाच लेना। अभी जाओ और देखो मेहमान आ गए हैं क्या। मरियम का मतलब अरसम की तरफ था। ओह तो अरसम भाई का इंतज़ार किया जा रहा है। उसने बतीसी निकाली। शहजादी अब अगर तुमने और बकवास की ना तो जान निकाल लूंगी तुम्हारी। मरियम उसे मारने के लिए अपने आसपास कोई चीज़ ढूंढने लगी। बस नाराज़ तो मत हो, जा रही हूँ देखने। वो मटक मटक के चलती बाहर निकल गई। ओए शफीक, सब काम हो गया, कुछ रह तो नहीं गया ना? कमाल साहब ने आवाज़ लगाई। नहीं साहब जी, सारे काम हो गए, शफीक ने जवाब दिया। अकीला देखो ज़रा अरसम और राहील कहाँ रह गए, देर हो रही है। दुर्दाना बेगम ने अकीला को आवाज़ लगाई। बेगम साहिबा राहील साहब जी तो किसी काम से अभी बाहर निकले हैं और छोटे साहब जी अपने कमरे में हैं। एक तो ये लड़का तैयार होने में इतना वक्त क्यों लगाता है। दुर्दाना बेगम अरसम के कमरे की तरफ चलने लगी। अरसम ड्रेसिंग के आगे खड़ा खुद पे परफ्यूम छिड़क रहा था जब दुर्दाना बेगम कमरे में दाखिल हुई। हाय मेरा लाल, मेरा चांद का टुकड़ा, माँ सदके जाए, कितना प्यारा लग रहा है। दुर्दाना बेगम ने शीशे से उसे देखते हुए हाथों से उसकी नज़र उतारी। अरसम ने अपना रुख उनकी तरफ किया। घने काले बाल जो ऊपर की तरफ टिकाए गए थे, मोटी आंखें, दरमियाने साइज़ के होंठों के ऊपर बारीक काली मूंछें जिनकी नोकें उसकी शख्सियत को दुगना कर रही थी। सफ़ेद लट्ठे का सूट और स्याह खेड़ी पहने वो 26 साल का जवान बहुत पुरकशिश लग रहा था। अरे अम्मी आप क्यों आ गई, मैं निकल ही रहा था। अरसम ने अपनी मूंछ को बल देते हुए कहा। मुझे पता है तुम्हारा, जब तक मैं तुम्हारे कमरे में ना आऊँ तुम बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते। अरे चलें अभी निकल जाते हैं बाहर, और टाइम देखें आप ज़रा, आपकी बातों में हम लेट हो गए। उसने सारा इल्ज़ाम दुर्दाना बेगम पे लगाया। क्या कहा, मेरी वजह से? दुर्दाना बेगम ने अरसम का कान खींचा। अम्मी छोड़े ना, दर्द हो रहा है। अरसम मुंह के जाविये बिगाड़ता हुआ बोला। तुम हर बार मेरे साथ ऐसा करते हो, आज बता देर किसकी वजह से हुई? वो मुस्कुराते हुए बोली। मेरी वजह से हुई, अब छोड़े ना। अरसम के बोलते ही दुर्दाना बेगम ने उसका कान छोड़ दिया। लो तुम माँ पुत्र यहाँ खेल लो, ज़रा वक्त देखो क्या हो गया। भाई मैं तो जा रहा हूँ, जिसको आना हो आ जाए। कमाल साहब हर बार की तरह यही धमकी देते हुए चल दिए। दुर्दाना बेगम और अरसम ने एक दूसरे की तरफ देखकर हंसी दबाई, क्योंकि वो जानते थे कि कमाल साहब बाहर गाड़ी के पास खड़े होकर उनका इंतजार करेंगे। माँ बेटा हवेली के गेट से बाहर निकले तो कमाल साहब वाकई इस बार भी गाड़ी के पास खड़े उनके आने का इंतजार कर रहे थे। एक गाड़ी गेट के पास आकर रुकी जिसमें से राहील बाहर निकला। वो खुश इखलाक और खुश शक्ल लड़का था, थोड़ा सा सांवला रंग मगर पुरकशिश, मोटी आंखें, स्लिम चेहरे के साथ हल्की सी तीखी थोड़ी, ऊपर वाला होंठ नीचे वाले होंठ से कदरे बारीक था। अरसम की निस्बत उसके ख्यालात ज़रा मॉडर्न किस्म के थे, जैसे कि अरसम कमीज शलवार पहनता था और राहील पैंट शर्ट पहनना पसंद करता था। अरसम को गाँव में रहना पसंद था, राहील शहर को पसंद करता था। अरसम थोड़ा सा संजीदा और बारोब था और राहील नटखट शरारती सा था। राहील दुर्दाना बेगम की बहन फरजाना का बेटा था। जब राहील 10 साल का था, फरजाना और उसका शौहर एक कार एक्सीडेंट में वफात पा गए। तभी से राहील दुर्दाना बेगम के घर ही रह रहा था। कोई भी अरसम और राहील में फ़र्क नहीं करता था और अरसम तो राहील पे जान छिड़कता था। अरसम राहील से 2 साल बड़ा था और यूं राहील 24 साल का हुआ। शुक्र कर तू भी आ गया, वरना आज तेरे बगैर ही मैंने अरसम की मंगनी कर देनी थी, कमाल साहब ने राहील को कहा। खालू जान ज़रा अरसम भाई से तो पूछ लें, मेरे बगैर वो मंगनी कर भी लेगा या नहीं? राहील अरसम की बगल में जाके खड़ा हुआ। तू तो जान है मेरी, तेरे बगैर मैं खाना नहीं खाता, मंगनी तो दूर की बात है। अरसम ने राहील के बालों में हाथ फेरा। अरे भाई क्या कर रहे हैं, इतना अच्छा हेयर स्टाइल ख़राब करेंगे आप? राहील की बात पे अरसम मुस्कुराने लगा। हमेशा तुम दोनों की वजह से मुझे देर हो जाती है, अब बातें ख़त्म हो गई हों तो चलें, कमाल साहब ने तंज़ किया। हाँ क्यों नहीं, राहील बोलता हुआ गाड़ी में बैठा। उसके साथ ही अरसम भी बैठ गया। कमाल साहब और दुर्दाना बेगम अलग गाड़ी में बैठे और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। उनके पीछे खड़ी मेहमानों की 5 गाड़ियाँ भी स्टार्ट हुईं। हर बार की तरह कमाल आज भी आधा घंटा लेट है। जमाल साहब ने हाथ पर बंधी घड़ी पे टाइम देखते हुए कहा। ओहो राना साहब, आपको मालूम तो है कमाल भाई आपकी तरह वक्त के पाबंद नहीं है, आते होंगे रास्ते में ही होंगे। सफ़िया बेगम बोली।
مگر آج کی بات اور ہے، آج تو جلدی آ جاتا، بس ابھی آ جائے، دیکھنا اس کی کیسی خاطر تواضع کرتا ہوں۔ جمال صاحب نے اپنی موٹی لمبی مونچھوں کو بل دیا۔ تبھی حویلی سے کمال صاحب اپنے خاندان کے ساتھ داخل ہوئے۔ میرا بھائی! جمال صاحب خوشی سے بازو پھیلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ صفیہ بیگم نے اپنی ہنسی دبائی، کیونکہ آج بھی ہر بار کی طرح جمال صاحب کا غصہ کمال صاحب کو دیکھتے ہی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ویسے تو جمال صاحب کمال صاحب سے بڑے تھے، لیکن ان دونوں کی شادی ایک ہی دن ہوئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد کمال کے گھر میں ارسم پیدا ہوا اور جمال کے گھر 4 سال تک اولاد نہ ہوئی، اور 5 سال بعد مریم پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے وہ ارسم سے 4 سال چھوٹی تھی۔ جب مریم 4 سال کی ہوئی تو صفیہ بیگم کو اللہ نے ایک اور بیٹی سے نوازا، جس کا نام انہوں نے شہزادی رکھا۔ شہزادی بھاگتی ہوئی مریم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپی چچی جان اور چچا جان آ گئے ہیں۔ وہ خوشی سے کھلکھلا رہی تھی۔ کیا ارسم آ گئے؟ مریم کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اچھا شہزادی بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ مریم کرسی سے اٹھی اور خود کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ پیروں تک آتی سبز اور گلابی رنگ کی فراک، گلابی دوپٹہ سر پہ ٹکائے ہوئے، سبز آنکھوں میں کاجل اور باریک چھوٹے ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائے، وہ بھی آج اپسرا لگ رہی تھی۔ ارے آپی آپ تو کمال لگ رہی ہیں، فکر ہی نہ کریں، ارسم بھائی تو ویسے بھی آپ پہ پہلے سے ہی فدا ہیں۔ وہ بتیسی نکالتے ہوئے اسے پھر سے چھیڑنے لگی۔ چپ کر شہزادی ورنہ۔ اچھا بھائی میں چپ، شہزادی نے اس کی بات ٹوک دی۔ جمال صاحب اور صفیہ بیگم کے ساتھ دردانہ بیگم اور کمال صاحب مریم کے کمرے میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم چچا اور چچی جان، مریم نے ان کے آگے سر کرتے ہوئے سلام کہا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے باری باری اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا۔ کتنی پیاری بچی ہے میری، پورے خاندان میں تمہارے جیسا نایاب ماشاءاللہ کوئی ہیرا نہیں ہے۔ دردانہ بیگم نے مریم کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ میرا تو بس چلے تمہیں آج ہی دلہن بنا کے لے جاؤں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو سبھی اس بات پہ مسکرانے لگے۔ بھائی ہے تو تمہاری ہی بیٹی، جب چاہے لے جاؤ، صفیہ بیگم نے کہا۔ بات تو آپ ٹھیک کر رہی ہیں بھابھی، اب مجھے بھی اپنے گھر کی رونق کے لیے جلد ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ دردانہ بیگم کی بات پہ شہزادی نے مریم کو چٹکی کاٹی۔ مریم معصوم بنی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اب مہمانوں کے سامنے تو جوتا اتارنے سے رہی۔ کمرے میں راحیل داخل ہوا اور کمال صاحب کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شہزادی نے کنکھیوں سے راحیل کی طرف دیکھا، جس ٹائپ کا وہ تھا شہزادی بھی اسی ٹائپ کی تھی، تھوڑی ماڈرن خیالات کی۔ راحیل نے شہزادی کی نظروں کو نوٹ کیا مگر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ دردانہ بیگم نے سونے کی انگوٹھی نکال کے مریم کی انگلی میں پہنائی اور کچھ رقم اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ بہت بہت مبارک ہو مریم بھابھی، آج سے آپ میرے ارسم بھائی کی منگ ہو گئی ہیں۔ راحیل نے سب کے سامنے مریم کو چھیڑا۔ کسی کا لحاظ بھی کر لیا کرو راحیل، دردانہ بیگم نے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ راحیل شرمندہ سا ہوا تو سب اسے دیکھ کے ہنسنے لگے۔ شہزادی نے مٹھائی کی پلیٹ اٹھائی اور سب کا منہ میٹھا کروانے لگی۔ یہ لیں چچی جان منہ میٹھا کریں، اس نے دردانہ بیگم کی طرف گلاب جامن بڑھایا۔ باری باری سب کا منہ میٹھا کروانے کے بعد وہ راحیل کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اب آخر میں راحیل ہی رہ گیا تھا۔ وہ اس کی طرف آئی، پلیٹ راحیل کے آگے بڑھائی۔ راحیل نے گہری نظروں سے شہزادی کو دیکھا۔ شہزادی نے راحیل کا رد عمل نہ پا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہزادی نے گھبرا کے آس پاس دیکھا تو سبھی باتوں میں مصروف تھے۔ جیسے سب کو کھلائی ہے ویسے ہی مجھے کھلاؤ، راحیل نے آہستہ آواز میں کہا۔ کیا؟ شہزادی کے اوسان خطا ہوئے۔ جو سنا وہی، راحیل بولا۔ مگر سب ہیں، کوئی دیکھ لے گا، وہ پریشان ہوئی۔ تو ٹھیک ہے پھر اکیلے میں کھلا دینا، میں پچھلے گیٹ کے ساتھ والے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہوا وہاں سے چل دیا اور شہزادی حیرت زدہ اس کی کمر کو دیکھتی رہ گئی۔ ارسم کے ساتھ منگنی کی تمام رسومات سر انجام دے دی گئی تھیں۔ دونوں خاندان اب حویلی کے صحن میں بیٹھ کے گپیں لگانے میں مصروف تھے۔ کمال بھائی، میں تو کہتا ہوں اسی مہینے کی آخری تاریخ شادی کے لیے پکی کر دیتے ہیں، کوئی ہمارے گھر میں بھی بیٹی سے رونق لگے گی۔ جیسا تمہیں ٹھیک لگے، میں تو ویسے ہی کرنے کو تیار ہوں کمال، جمال صاحب نے کہا۔ لیکن رانا صاحب اتنی جلدی شادی کس لیے؟ ابھی ہمیں اتنی تیاریاں کرنی ہیں، اسی ماہ کے اندر اندر کیسے سب ہوگا؟ صفیہ بیگم بولی۔ ارے صفیہ، سب کچھ ہو جائے گا اگر ہم ارادہ کر لیں تو۔ دیکھو صفیہ، کمال صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کا وقت آ گیا ہے، دردانہ بیگم نے کہا۔ چلیں بھائی ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں اسی مہینے شادی۔ صفیہ بیگم نے ہتھیار پھینکے تو سبھی کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ خاندان کو باتیں کرتا دیکھ کے شہزادی ہاتھ میں پلیٹ لیے پچھلے گیٹ کے ساتھ والے کمرے کی طرف چلنے لگی۔ ارے شہزادی کدھر جا رہی ہے گلاب جامن لے کے؟ رشتہ داروں میں بیٹھی ایک موٹی سی عورت بولی۔ کہیں نہیں خالہ، پلیٹ کچن میں رکھنے جا رہی ہوں، اس نے بہانہ گھڑا۔ اچھا لا پھر مجھے ہی دے دے، وہ بولی تو شہزادی اسے دل ہی دل میں گالیاں دیتی اس کی طرف بڑھی۔ عورت نے پلیٹ پکڑی اور مزے سے گلاب جامن کھانے لگی۔ شہزادی، ابھی سارا خاندان اکٹھا بیٹھا ہے، ایسا موقع پھر نہیں آئے گا، اس نے سوچتے ہوئے راحیل کے کہے ہوئے کمرے کی طرف قدم اٹھائے۔ شہزادی آہستہ سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے کمرے کو چاروں اور سے دیکھا مگر راحیل نظر نہیں آیا۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی تو راحیل دروازے کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ شہزادی اسے اچانک اتنا قریب دیکھ کے ڈر گئی۔ راحیل نے دروازہ بند کیا اور پھر سے شہزادی کی طرف رخ کیا۔ وہ مٹھائی میں لا رہی تھی لیکن راستے میں خالہ نے مانگ لی۔ وہ گھبراہٹ سے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ خیر ہے، مٹھائی تو بہانہ ہے، اصل مقصد تو تمہیں بلانا تھا۔ مگر کیوں؟ اس نے پوچھا۔ شہزادی، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ جی پوچھیں۔ میں جب بھی یہاں آتا ہوں تم
हमेशा मुझे छुप छुप के देखती हो। पहले तो मैं इसे अपना वहम समझता रहा, लेकिन आज फिर खुद को तुम्हारी नज़रों के हिसार में पाया, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लिया जाए। वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, क्या? मैंने कब देखा आपको? ये आपका वहम है, संजीदा मत हो। उसने झूठ कहा, मगर उसकी लड़खड़ाती ज़ुबान उसके झूठ की गवाही दे रही थी। ओह, तो मतलब तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ नहीं? फिर मैं ही पागल था जो खाला जान से रिश्ते की बात करने वाला था। उसने उदास चेहरा बनाया। क्या आप रिश्ते की बात करने वाले थे? शहजादी चौंक उठी। हाँ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, अब नहीं करूँगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? शहजादी को जान के लाले पड़े। तो क्या तुम्हारे दिल में कुछ है मेरे लिए? उसने शहजादी की चोरी पकड़ी। शहजादी अपनी ही बात से फंस चुकी थी और आंखें मोटी किए उसे देखने लगी। राहिल की आंखों में जज्बात उमड़े, जिन्हें देखकर शहजादी उसके सामने मजीद खड़ी नहीं रह पाई और कमरे से बाहर भाग गई। राहिल बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगा। रात के 10 बजे जब सब घर वाले सो रहे थे, मरियम अरसम के ख्वाब जागती आंखों से देख रही थी। वो अपने बालों की एक लट को पकड़े उसे उंगली से घुमाते हुए मुस्कुरा रही थी जब उसे दरवाजे की तरफ एक साया दिखाई दिया। मरियम ने शहजादी की तरफ देखा तो वो सो रही थी। उसने फिर ज़मीन पर नमूदार हुए साये की तरफ देखा। कौन हो सकता है, उसने दिल में सोचा। वो उठ के बैठी। उसकी कलाई में पहनी सबज गुलाबी चूड़ियों की खनखनाहट कमरे में गूंजी। उसने अपने हाथ एक जगह टकाए ताकि चूड़ियों की आवाज़ पैदा ना हो। वो फिर से उस साये को देखने लगी। देखते देखते उस साये ने हाथों से कुछ इशारे करने शुरू किए। मरियम ने जब गौर से देखा तो उसने हाथ की एक उंगली उसकी तरफ करके फिर अपने सीने पर रखी। खौफ से मरियम की बैठे हुए भी टांगें कांपने लगी। वो साया पीछे को मुड़ा और मरियम की नज़रों से ओझल हो गया। मरियम को महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल उछल कर बाहर आ जाएगा। वो साये के किए गए इशारे को सोचने लगी, जिससे उसके दिमाग में एक ही बात आई। वो साया मरियम को ये कहकर गया था कि तुम मेरी हो। खौफ से मरियम वहीं जम गई।